Bismillahirrahmanirrahim. Last time we discussed the last thing as how to develop an interpolating polynomial when data is equally spaced. Itza, can you see this word file? Yes, sir. So we have this data set where x values are equally spaced, and the difference between two consecutive x values is h. Now, once we have equally spaced data, what we do is use polynomial in this form, where delta y naught, delta square y naught, delta cube y naught, these are differences or forward differences starting all at x naught, that is first value of I that we select for interpolation. So first task is to develop forward differences. We define forward differences first order as the difference of two consecutive y values. 3.4 minus 2.1 is 1.3. 5.2 minus 3.4 is 1.8, and so on. In this way, all the first order the forward differences are constructed or calculated. For second order divided differences, we do what? We take the difference of first order differences to make a second order difference. So it is 1.8 minus 1.3, that gives you 5.1. Unlike divided differences, we don't use x in calculating these differences because the difference between x is constant. So that is, we discussed last time that they are no more required. Progressively, we keep on making higher order differences. And for every given set of data, if I have got 3 points, I will make two first order forward differences and one second order. With the 4 points, I can make 3 first order differences, 2 second order differences, and only 1 third order difference. For instance, if I choose this yellow part of the table for forward difference interpolating polynomial, with 4 points, I can construct 3 first order, 2 second order, and 1 third order difference. But in order to use this formula, we use only these 3 differences. The first order difference starting at first x value, second order difference starting at first x value, and first x value is now 1 if I use only this yellow part. Why I'll be using only this yellow part, that we also discussed. For example, this data table, we have to find an estimate of y for x is equal to 2.3 using a third degree forward difference interpolating polynomial. Now for third degree polynomial, we have to use 4 points where we have to interpolate x is equal to 2.3, for which we need the estimate of y. 2.3 is missing from this data. 2.3 lies in the data somewhere here, which is missing, for which we don't have a y value. Now, to estimate y for x is equal to 2.3, I can use either these 4 data points, which are colored in blue, or leave out 1, comma 5.2 and start with 1.5 and go up to 3. Anyways, when we select the point where we have to interpolate, the degree of the polynomial that we have to use, then we select the number of points. So third degree polynomial require 4 points, and then we go for select 4 points in such a way, जिस point पे मुझे interpolate करनी है,
जो मिसिंग है डेटा से, उसके इर्द गिर्द के 4 पॉइंट्स. So here the details are described, and I hope this I have shared this file on the resources of LMS. Anyways, if we're starting at x is equal to 1, I have to calculate few more things before I can effectively use this formula. मैंने फॉरवर्ड डिफरेंसेस तो ये लिख लिए, ये वाले इंडिकेट कर दिए कि मैं यहाँ डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और डेल्टा क्यूब वाई नॉट की जगह क्या इस्तेमाल करूँगा, ये 3 इस्तेमाल करूँगा अगर मैं ये 4 डेटा पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो. उसके बाद इस फॉर्मूले में एक ही और चीज़ रह गई है, फर्स्ट वाई वैल्यू विच विल बी 5.2 and the S value. For S value, we discussed that we have to calculate that S value using what? This here, S is equal to x minus x naught. X जिस point पे मैं interpolate कर रहा हूँ, इस case में 2.3 है. X naught, and I have taken x naught to be 1. First point, first x value in my data. So 2.3 minus 1, and the h, the constant difference between x values, that is 0.5 in this case, and that gives me the value of h, value of s 2.6 that I have to substitute in this formula. So I have rewritten this formula here क्योंकि अब cubic तक इस्तेमाल करना है. Now with s 2.6 replace everywhere wherever s appears in this formula. Y naught delta यहाँ पे h की जाती है, h denominator में h, in the formula we don't have h. We only have differences. So जो differences हैं, delta y naught, let me show you the table. ये y इस्तेमाल होगा, ये y naught delta y इस्तेमाल होगा, ये delta square y इस्तेमाल होगा और ये delta y cube इस्तेमाल होगा. So we substitute all these values and calculate the value of y, which is in this case P3 2.6 at 2.6. 2.6 is the S value. And with 10.9, almost 11, the result is reasonable or not. We go back, almost 11 result we get. So between 2 and 2.3, what are the possible y values? And our result is 11, which seems to be perfectly reasonable. But the last thing, we plotted the data, and the data is scattered, shows more an exponential like of growth. So a third-degree polynomial and the behavior of an exponential function, of course, are different, but we will shortly learn another technique where we, instead of developing and interpreting polynomial, we will be fitting some function like exponential function. तो corresponding Excel sheet में आपको दिखाऊं, अगर ये सारा काम किया हुआ है, जो आप वही टेबल है जो मैंने आपको वहाँ दिखाई. ये डेटा स्कैटर जो है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको, is someone moving in a traffic, heavily traffic road? Thank you for closing down the sound. ये डेटा स्कैटर है. इंटरप्रेटिंग प्रोनोमियल से मैंने रिजल्ट जो भी हासिल किया वो अपनी जगह पे, लेकिन मैंने अभी कहा कि इसका बिहेवियर इज मोर लाइक एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने इस पर फिट किया है. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये जो ब्लू लाइन है ये just an arbitrary curve,
that I have plotted considering these xy values and just join them with arbitrary lines, just to see a rough trend of the data. But the blue line is just the scatter of the data. The black line, black curve, is an exponential curve which is fitted over this data. How it is fitted, we will learn later on. But here, this was just a revision of what we did last time. And I now have to move forward. The last thing we considered was why the worksheet is not appearing. Okay. I'll give you some exercises to practice application of this formula. अभी मैंने आपको जिस आपके सामने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है, इसमें हमने आपसे कहा है कि थर्ड डिग्री पोलिनोमियल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दें कि नहीं भाई थर्ड डिग्री नहीं, फोर्थ डिग्री करें, अगर फोर्थ डिग्री करेंगे तो इस फॉर्मूले में एक टर्म और इजाफा हो जाएगा और फोर्थ डिग्री के लिए 5 पॉइंट्स इस्तेमाल करने होंगे। और अगर आपने x = 2.3 पर ही करना है इंटरपोलेट, तो it's better that I give you an exercise here at the end for data above, obtain an estimate of y for x is equal to 2.3 using fourth degree let me write down a brief forward difference interpolating polynomial. So आपने इसी डेटा में से कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि 4 पॉइंट के बजाय 5 पॉइंट इस्तेमाल करने, क्योंकि अब 4 डिग्री के लिए गया है। So if I go to the Excel sheet, I will indicate what points कि अब आपने let me color, एक तो ये इजाफी पॉइंट इस्तेमाल करना है और चूंकि अब 4 डिग्री है तो आपने फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस भी इस्तेमाल करना है. This part will be used. Okay. With that, I leave this and come to discuss curve fitting. Achha ji. Before I actually talk about the difference of nature of work that now I'm going to start compared to what we have been doing up to now in this chapter. मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि अगर मेरा पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, व्हेन आई डेवलप एन इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, चाहे वो लैग्रांज पोलिनोमियल हो, चाहे वो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल हो, चाहे वो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग, अगर इक्वली स्पेस डेटा है तो फिर फॉरवर्ड. The way I have drawn this, it is not equally spaced, and the polynomial may be something like this. Sorry, I'm not able to make a very good drawing on this whiteboard. जब मैं polynomial function बनाता हूँ ना,
तो उसका ग्राफ जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल बना रहा हूँ, उसमें अगर मैं एक्स नॉट रख दूँ एक्स की जगह पे, तो रिजल्ट जो है वो वाई नॉट आएगा। ना व्हाट आर एक्स नॉट वाई नॉट, ये मेरे डेटा है, एक्स नॉट वाई नॉट, x1 y1 x2 y2 एटसेट्रा। अगर मैं इस पोलिनोमियल में, जिसको मैं इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कह रहा हूँ, x की जगह x2 रख दूँ तो रिजल्ट y2 आएगा। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल ग्राफ मैंने बना दिया है, ये ग्राफ जो है जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं उन एक्चुअल डेटा पॉइंट्स पर से गुजरता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये कर्व बड़ा स्मूथ है, क्योंकि पोलिनोमियल चाहे सेकंड डिग्री हो थर्ड डिग्री हो, उसमें झटके नहीं आते जैसे लग रहा है कि यहाँ झटका आ रहा है। इट्स स्मूथ कर्व। तो यहाँ ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल फिट्स द डेटा एंड वाइस वर्सा। And data fits the polynomial. This is the basic idea when we use interpolating polynomial. Every interpolating polynomial has this characteristic: polynomial fits the data and data fits the polynomial. इसका मतलब ये है कि मैं तो पोलिनोमियल के फॉर्मूले लिख दिए हैं इस तरह से, जैसे कि y नॉट प्लस फॉर एग्जांपल x माइनस एक्स नॉट, और डिवाइडेड डिफरेंस के केस में इस तरह से था, प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 and second order divided difference at x naught etc. अगर मैं अगर ये P2 ही है फॉर एग्जांपल, मैं P2 पे टर्मिनेट कर दूं इसको, ये नंबर जो हैं, y नॉट एक नंबर है इसमें, x नॉट एक नंबर है इसके अंदर, ये एक नंबर है इसके अंदर, x इज द वेरिएबल। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो ये सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल आएगा, जिसकी जनरल फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जबकि अगर मैं P3x लिखूं और P3x का इस तरह का फॉर्मूला लिखूं, तो उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमने जिस तरह से पढ़ा है उसमें हमने ये रिडक्शन नहीं की है, हमने सिर्फ ये फॉर्मूला लिया है और इस फॉर्मूले में जिस पॉइंट पर यानी x इज इक्वल टू 2.3 पर हमने इंटरपोलेट किया था कर लिया, बाकी सारे नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे वो डाल दिए इसके अंदर। यानी इस एक्सप्रेशन को यानी फॉर्मूले को हमने अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में नहीं लिखा। इसी तरह थर्ड डिग्री पोलिनोमियल हमने इस्तेमाल किया तो उसको हमने अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके ऐसे नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ डेटा इस्तेमाल करके जिस पॉइंट पे y का एस्टिमेट चाहिए उस पॉइंट पे कैलकुलेशन कर डाली। ये सारे फॉर्मूले, चाहे डिवाइडेड डिफरेंस जैसे मैंने यहाँ लिखा या फॉरवर्ड डिफरेंस जो अभी हमने डिस्कस किया, उन सब की बुनियादी प्रॉपर्टी जो है वो ये है। कि ये जो पोलिनोमियल बनेगा, ये जो फंक्शन बनेगा, उसका मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ जो है, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो ग्राफ जो है इन डेटा पॉइंट से एग्जैक्टली गुजरेगा, जिसको हम कहते हैं पोलिनोमियल फिट्स द डेटा एंड डेटा फिट्स द पोलिनोमियल। लेकिन अब जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है। अब बिफोर आई गो टू दैट, लेट मी शो हाउ इट इज डिफरेंट। Suppose these are my data points. हाँ, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल डिस्कस करने से पहले जब हमने काम
बात की थी इंटरपोलेशन को इंट्रोड्यूस करने की, वो ये थी कि हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं। डेटा रिकॉर्ड करना किसी एक्सपेरिमेंट में किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट हो सकती है जिसको हम नोट डाउन करने जा रहे हैं, कोई सर्वे हो सकता है, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग्स। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके अगर उसमें से 2 वेरिएबल्स हैं, यानी सिर्फ एक्स कह दूं एक को मैं वाई कह दूं, और जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उसको मैं प्लॉट करूं। इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल का आइडिया ये है कि मेरा डेटा एक्यूरेट है, लिहाजा जो फंक्शन मैं एस्टिमेटिंग फंक्शन बनाऊंगा उसका ग्राफ जो है उसको डेटा में से गुजर जाना चाहिए। और वही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, डेटा फिर से पोलिनोमियल और पोलिनोमियल फिर से डेटा। मगर अक्सर और बेशतर जब हम मेजरमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करने के दौरान एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं। आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज हैं, एक दफा अगर डेटा चला गया किसी डेटाबेस में या किसी वर्कशीट में, तो उसके बाद उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हम डेटा लूज नहीं करते, जो डेटा ज़ाया नहीं होता, डेटा चेंज नहीं होता। लेकिन इन दी इनिशियल फेज जिस वक्त हम फिजिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, उसमें हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर्स की जादुई ज़िंदगी से पहले डेटा कागज़ों में कलेक्ट होता था, फिर दूसरे कागज़ों में मुंतकिल होता था, फिर तीसरे कागज़ में मुंतकिल, फिर एक बड़े रजिस्टर में मुंतकिल होता था। तो मैनुअल कॉपिंग में कई मिस्टेक्स हो सकती हैं। So what we are going to discuss now is based on this idea कि यार ये मेरा डेटा जो है ये ऑथेंटिक नहीं है। Maybe the behavior or the relation between x and y is linear. So what is the best line that fits this given data? So we are now going to forget about data fits the polynomial and polynomial fits the data, and rather we just look at the scatter of the data. And for example, I have a data of this type, and I know little mathematics. तो बजाय ये सोचने के इस स्कैटर पे मैं सोच सकता हूँ कि ये डेटा स्कैटर जो है इसमें अगर एरर्स हैं भी तो एक ओवरऑल बिहेवियर नजर आ रहा है इसका पैराबोलिक। अगर मैं इसको पैराबोलिक समझूं तो मेरे पास, मैं एक पैराबोला फिट करने की कोशिश करूंगा इस पे, और इफ देयर इज अ स्मार्टर मैथमेटिशियन वो कहेगा कि नहीं यार, एक मिनिमम यहाँ आ रहा है और एक मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, तो पैराबोलिक कर्व के बजाय इट शुड हैव बीन अ क्यूबिक कर्व ऑफ दिस टाइप। सो डेटा स्कैटर देखकर मैं ये सोचूंगा कि मैं किस किस्म का कर्व फिट करने की कोशिश करूं। अच्छा, whether I am going to fit a linear curve, or now this linear curve means I have to develop y is equal to ax plus b. If I want to develop a parabola, that means I have to develop y is equal to ax square plus bx plus c. If I have to develop a cubic, that means I have to develop ax cube plus bx square plus cx plus d. In order to find out the best line that fits मुझे a और b कांस्टेंट्स चाहिए। मैंने एक टर्म इस्तेमाल कर दी, स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा। इट्स नॉट फिटिंग द डेटा, बेस्ट पॉसिबल, यानी कम से कम एरर हो मेरी लाइन से। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करूँ, यहाँ पे x कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज x इक्वल टू 4, तो दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x4 y4, मगर लाइन के हिसाब से y की वैल्यू ये आएगी, सो आई हैव सम एरर। और मैं ये अज्यूम करूंगा कि क्योंकि मेरा अंदाजा ये है कि डेटा एक्चुअली लीनियर था, मेरी
रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा या मेजरमेंट ऑफ वट एवर आई एम ट्राइंग टू एनालाइज, उसमें कुछ एरर थी, तो वो ये एरर थी। इस एरर को मिनिमम बना के मुझे एक अगर लाइन फिट करनी है तो मैं उसको कहता हूँ बेस्ट लाइन दैट आई कैन फिट दिस डेटा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे क्वाड्रेटिक फिट करना है तो क्वाड्रेटिक में भी मेरे पास एरर्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट सपोज हैज कोऑर्डिनेट्स x5 y5, तो यहाँ पर पैराबोला पे जो पॉइंट आ रहा है उसका y और एक्चुअल डेटा का y5 इसमें एरर है। So if I have to fit a parabola, I have to fit the best parabola. That means I have to have this error small as possible. And that is why we use the term least squares approximation. So fitting a best possible curve, we are doing what? We are doing least square approximation, and its common meaning is that जो कर्व मैं अज्यूम करूं कि डेटा का बिहेवियर भाई क्यूबिक है, तो अब मैं जो क्यूबिक इक्वेशन बनाऊं यानी ए बी सी डी मालूम करूं, उसकी वजह से जो वाई जनरेट होगा उस वाई में और एक्चुअल वाई वैल्यूज ऑफ द डेटा में मिनिमम पॉसिबल एरर हो। दिस इज द आइडिया of what we are going to discuss now. So least square, जो कुछ मैंने अभी फिगर के जरिए डिस्क्राइब किया है वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और we start with this point कि when I calculate, when I develop a curve y is equal to fx, which may be linear, which may be quadratic, which may be cubic, which may be exponential, which may be logarithmic, मुख्तलिफ जो है वो हम functions जो हैं वो उनका best fit on the given data मालूम कर सकते हैं। तो whatever is fx, जब मैं किसी given value of x पर f की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कोई y वैल्यू आएगी। वो y वैल्यू yi नहीं होगी, यानी अगर x की जगह x1 रखूं तो यहाँ रिजल्ट y1 नहीं आएगा जो कि डेटा का हिस्सा है। x की जगह x3 रखूं तो y3 नहीं आएगा जो कि डेटा का हिस्सा है। इसका मतलब y और y1 या y और y2 या y और y10 में कुछ डिफरेंस होगा इन जनरल। इस डिफरेंस को आप चाहें तो शरीफाना तरीके से सिर्फ डिफरेंस कहिए, या आप ज़्यादा हकीकत पसंदी से काम लीजिए, मोर रियलिस्टिकली इट इज़ एरर। Now, this error can be interpreted in both ways. It is error in the development of an approximating function f, or it is the error in the recording of the data. So whatever is the physical reason behind this error, we just treat this mathematically as an error and we have to minimize this error. और ये एरर जो है हर डेटा वैल्यू यानी हर x पर जो y कैलकुलेट करूंगा वो y ओरिजिनल डेटा के y के बराबर होना इन जनरल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। Thus at each point xi yi there is some error y minus yi involved. For the best fitting function हम चाहेंगे कि इस एरर को मिनिमाइज रखें किसी ना किसी तरह से। तो मिनिमाइजेशन के लिए जो आइडिया है इसको आप स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन के नाम से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा जनरल जाऊँगा। हो सकता है आपके स्टैटिस्टिक्स के टीचर ने रिग्रेशन पढ़ाते वक्त आपको ये आइडिया दिया हो कि जिस तरीके से आप लीनियर रिग्रेशन करते हैं इसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं और क्यूबिक भी कर सकते हैं, वही यहाँ पे मैं डेवलप करूँगा। अच्छा जनाब, फॉर रीजंस दैट विल बिकम क्लियर अ लिटिल लेटर, हम एरर्स के स्क्वायर्स लेते हैं और अभी हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि हर xi yi पे y and yi will not match
इनके दरमियान कुछ डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे और उन तमाम डिफरेंसेस के स्क्वायर्स को ऐड करके इसको हम एरर फंक्शन का नाम दे रहे हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x के अंदर xi रखेंगे तो वो yi के बराबर नहीं आएगा, इस फंक्शन के हिसाब से वो y होगा, कुछ और वैल्यू होगी। एनी फंक्शन हैज इट्स मिनिमम वेयर इट्स डेरिवेटिव वैनिशेस। आपको ये कैलकुलस से याद होगा कि अगर आपने मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता है तो आप किसका, इस वक्त हम इस एरर फंक्शन का मिनिमम निकालेंगे। किसी भी फंक्शन का मिनिमम निकालना होता है तो आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेकर उसको जीरो रख देते हैं। This basic fact is going to be used here for the development of linear least square approximation. So linear means I'm assuming that fx जिस फंक्शन को मैं जिस फंक्शन को फिट करने जा रहा हूँ डेटा पे बेस्ट पॉसिबल, वो ax प्लस b है। इसका मतलब मुझे a और b निकालने हैं और एरर फंक्शन इज गिवन बाय a। तो अब अगर इस fx की जगह मैं ax प्लस b रख दूँ तो in fact I will replace fx by axi plus b with the understanding कि ये जो है ये वाला फंक्शन है और इस फंक्शन यानी y और y1 y2 y इनके दरमियान डिफरेंस है। अब जब मैं एरर फंक्शन पर नज़र डालता हूं तो मैं देखता हूं कि xi yi ये तो मेरे डेटा से आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। इस एरर फंक्शन में अगर कुछ अननोन है तो वो a और b है और यही अननोन मुझे तलाश करने हैं टू डिटरमाइन the linear function that best fits my data. चुनाचे मैं इस error function को as a function of two variables consider करता हूँ. One is a variable in the sense of unknown of the problem. Unknown of the problem when I'm fitting a linear function on the given data, a and b are unknown. So my error function is a function of a and b. और जब दो वेरिएबल का फंक्शन होता है तब भी मिनिमम निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव ही लेना है। Derivative with respect to one variable, the derivative with respect to the other variable. So when you take the derivative with respect to a, so I hope you remember taking derivative which is partial derivative because the function is a function of two variables. इस एक्सप्रेशन में अननोन्स a and b हैं। इस वक्त मैं डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू a ले रहा हूँ तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, लेकिन ये पावर फंक्शन इन्वॉल्व है तो पहले डेरिवेटिव लेते वक्त 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग एंड देन इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a। जब विद रिस्पेक्ट टू a आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी बचेगा कांस्टेंट xi। सो 2 इनटू दिस ब्रैकेट expression multiplied by derivative of the bracket expression with respect to a, and this is it. समेशन अगर आपने स्टैट्स और यकीनन स्टैट्स के कोर्स पढ़े होंगे, समेशंस की प्रॉपर्टीज से आप खूब खेल चुके होंगे। एक तो 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, समेशन हर टर्म में 2 आ रहा है तो 2 कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट। फिर इस समेशन में जिसमें i goes from 1 to n, समेशन इज इफेक्टिंग xi and yi, नॉट a and b। तो इस तरह से आप 3 टर्म समेशन की बनाएंगे, एक में xi स्क्वायर होगा, एक में सिर्फ xi होगा और एक में xi yi होगा। xi yi की टर्म आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे और xi स्क्वायर की टर्म में से a कॉमन बाहर निकलेगा, bxi की टर्म में से b कॉमन बाहर निकलेगा। Now this is the equation obtained which is linear in two unknowns a and b, which we have obtained from the error function, which is function of unknowns a and b, and we differentiated with respect to a and we obtained this result. Since there are two unknowns involved, I take the derivative with respect to the other unknown and equate it to 0. Previously, I took the derivative with respect to first unknown a and equated to 0 for minimum possible value of e. Now I'm taking derivative with respect to b, the other unknown, and I hope you can understand that this function differentiated with respect to b. So power
कि वह चूंकि मौजूद है, लिहाजा 2 इंटू ये एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी द एक्सप्रेशन इन साइट, तो बी का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, बाकी चीजें कांस्टेंट हैं बिकॉज वी आर टेकिंग बी एज द अननोन और द वेरिएबल। So this time 1 will be multiplied by this expression instead of xi, क्योंकि पहले आपने जो डेरिवेटिव लिया था वो with respect to a लिया था और उसका जो कोएफिशिएंट xi है वो इनसाइड फंक्शन के डेरिवेटिव में बच गया था। अब के इनसाइड फंक्शन के डेरिवेटिव में जब आप रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। एंड अगेन समेशन प्रॉपर्टीज की वजह से समेशन वाई आई राइट पे चला जाएगा और बाकी दो टर्म्स जो हैं उनमें से ए और बी बाहर निकलेंगे and you get another equation. Now B and C are two equations which involve the unknown A and B. All the other things are constants. They will be obtained from the data. अगर मेरे पास 10 पॉइंट हैं तो हर पॉइंट के x का स्क्वायर उनका सम, हर पॉइंट का x उसका सम, हर पॉइंट के x और y के प्रोडक्ट का सम। इसी तरह यहाँ पर हर पॉइंट के x का सम, यहाँ पर हर पॉइंट के y का सम। एंड व्हाट इज दिस? b के साथ ना x था ना y था, तो समेशन b था तो b बाहर निकलेगा, समेशन 1 बचेगा। तो i इज इक्वल टू 1 टू n, जब तुम 1 को ऐड करोगे n टाइम्स तो टोटल n आएगा। दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव डन इन स्टैटिस्टिक्स। नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय b एंड c, इसका मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं। आई होप लीनियर अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा है वो ये काम जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा तब भी इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड उसका ये है कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और उसको रिड्यूस करें और उससे ए और बी निकालें, राइट। सो ये जो इक्वेशन हासिल हुई हैं बी और सी, हम इनको नॉर्मल इक्वेशंस कहा करते हैं। मैंने यहाँ की टर्म इस्तेमाल नहीं की है शायद, और इन दो इक्वेशंस के ज़रिए हम वो लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी निकाल रहे हैं जो हम समझते हैं कि गिवन डेटा को बेस्ट फिट करता है। और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ए और बी निकालने के लिए ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, जिनकी डिटर्मिनेशन डेफिनेटली उसी डेटा पे डिपेंड करती है जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी निकालो या मैट्रिक्स मेथड से अननोन्स निकालो, ये कॉलम ऑफ ए है ये कॉलम ऑफ बी है। मैट्रिक्स मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं। Look at this data and let me try to find out the corresponding Excel sheet. Least square Excel sheet. ये हरकतें शुरू हो गई। I was discussing this file and now which is a Word file, and now I want to share an Excel file. और ये जैसे ही मैंने एक्सेल फाइल खोलने की कोशिश की थी उसने शेयरिंग को पॉज कर दिया था। आहा, ये गड़बड़ कर रहा है। रिज्यूम शेयर नहीं करके दे रहा। I'm sorry, there is something wrong with the sharing Excel sheet. Now this here is the data. This is just the index number. अच्छा, याद रखें कि इससे पहले जब हम इंटरपोलेटिंग प्रोग्रामिंग कर रहे थे पहले पॉइंट का इंडेक्स 0 लेते थे, यानी पहला पॉइंट x0 y0 होता था। लेकिन अब हमने वो छोड़ दिया इसलिए कि हम सारे पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं। पहला काउंटिंग इज देयर, सो जब काउंटिंग इज देयर तो काउंटिंग इज ऑलवेज काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स एट 1। तो अब हम लेबलिंग जो है वो x1 y1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 7 पॉइंट्स है हमारे पास।
मैं इसका डेटा स्कैटर दिखाना चाह रहा था, जिसकी वजह से लेट मी ट्राई वंस मोर। जैसे मैं एक्सेल शीट पे जाता हूँ वो पॉज कर देता है, कुछ देर इज सम प्रॉब्लम, ये कभी कभी हो जाती है मेरे पास। अच्छा साहब, तो ये एक्स साइज है, यानी x1 x2 x3 अप टू x7, ये y1 y2 y3 अप टू y7। फिर एक्स स्क्वायर, हमें फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर चाहिए, हमें फॉर्मूले में x इंटू वाई चाहिए, हमें फॉर्मूले में समीशन x चाहिए, समीशन x यहाँ आ रहा है, हमें फॉर्मूले में समीशन y चाहिए, समीशन y यहाँ आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, और समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई यहाँ आ रहा है। सो ये जो नीचे सम्स हैं इस लाइन में, ये सम्स जो है वो हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन में रखे। आपकी मर्जी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, किस तरह से, इसको ax प्लस बी प्लस सी ले लें, इसको ax प्लस बी प्लस सी ले लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने रिड्यूस किया, और उस रिडक्शन से b की वैल्यू 4.7 और a की वैल्यू 0.36 आ गई। और गिवन डेटा सेट जो है, ये ब्लू डॉट्स, they corresponds to the given data set, and this line is the line that I have just obtained through this process, जिसमें y is equal to ax plus b है, और ये y is equal to ax plus b लिखा हुआ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने एक्सेल शीट से रिड्यूस की थी, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन एक्सेल शीट एक्टिवेट नहीं हो रही इन स्क्रीन शेयरिंग, जिसकी वजह से मैं ये बात दिखा नहीं पा रहा। Now that concludes the demonstration of how a best possible straight line can be fit to a given data. यकीनन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि लाइन और डेटा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा आउट है, और it requires some other functions to fit this data. लेकिन as I said, this is just demonstration of fitting a straight line to a given data set. Here is the data set, and this sums up the process. पहले system of equation बनाना, जिसमें unknowns a और b हैं, जो कि ultimately line की equation के लिए हमें चाहिए, and that is there. In the same way, we can develop a quadratic function that best fits the data. So again, we will be working with error function. Y minus yi, which was a whole square, a sum from first point to the last point. This is sum of the squares of the errors in y. Initially, simply written as function of x, because my function is that I'm going to fit on this data is y is equal to fx. When I replace x by xi in this and place it for y, I know that this y will not be same as this yi, and there will be some difference. Now we see that how many unknowns are involved. When I have to develop a second degree polynomial, there will be 3 unknowns a, b, c. When I'll be developing a cubic polynomial, there will be 4 unknowns a, b, c, d. Acha ji. So the error function is now a function of 3 unknowns a, b, c. Whatever we just did for development of best fitting line, we repeat that process here. पहले हमने a और b पे पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे और उनको 0 के बराबर इक्वेट किया था। अब हम a, b, c तीनों पे अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उनको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे।
So first with respect to a, ये x ये whole square function है, तो 2 multiplied by the base into derivative of the function inside with respect to a. तो a वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो इस टर्म का जब डेरिवेटिव लूंगा तो xi स्क्वायर बचेगा. xi स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एवरी टर्म, 2 कॉमन कैंसल्स आउट. समेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके वी गेट a टाइम्स समेशन xi पावर 4, b टाइम्स समेशन xi पावर 3, c टाइम्स समेशन xi पावर 2, and there is a term that involves the sum of yi xi square, which is negative and can be taken to the other side. Similarly, we differentiate with respect to b, and when we differentiate with respect to b, तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव तो वैसे ही 2 into दिस एक्सप्रेशन आएगा, और इनसाइड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव with respect to b लेंगे तो xi बचेगा, and that will result into this equation in a b c. a का कोफिशिएंट आपके समेशन xi क्यूब, c पहली इक्वेशन में a का कोफिशिएंट समेशन xi 4 था, अब ये समेशन xi 3 है. b का समेशन xi 3 था, अब b का समेशन xi स्क्वायर. c का समेशन xi स्क्वायर था, अब c का समेशन xi. राइट साइड पहली इक्वेशन में समेशन xi स्क्वायर yi था, दूसरी इक्वेशन में समेशन xi yi आया. फाइनली take the derivative of this function, this one, with respect to c. पावर का डेरिवेटिव आएगा, और c इनसाइड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू c लेंगे तो 1 आएगा, तो बाहर कुछ भी नहीं, 1 ही लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा नहीं है. And then using the properties of summation, simplify this equation and note equation D, E, and F. To solve a system of linear equation with 3 unknowns, you need 3 equations, and we have got 3 equations. Why I'm calling this system of linear equations? इसलिए कि unknowns जो हैं A, B, C, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में unknowns जो है उनकी पावर 1 है, उसके अलावा कांस्टेंट्स है इसमें. दैट इज व्हाई दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तुम कैसे लिखोगे? इसी तरह लिखे रहने दो, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, ऑफ कोर्स आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस डेटा, या इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करो. टू ऑब्टेन द फंक्शन y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, आपने इस सिस्टम इक्वेशन को चाहे इस फॉर्म में साइमल्टेनियस सॉल्व करो, चाहे इस फॉर्म में मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो. दिस इज कॉलम ऑफ ए, कॉलम ऑफ बी, कॉलम ऑफ सी, राइट साइड कांस्टेंट्स. मैट्रिक्स मेथड से इस्तेमाल करो, ए बी और सी, ए बी सी डी मालूम करने हैं. नहीं, हमारा अननोन फंक्शन जो था वो क्वाड्रेटिक था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी मालूम करने हैं. 3 इक्वेशन से 3 अननोन ए बी सी मालूम हो जाएंगे. तो टेक्निकली द डिस्कशन ऑन ऑब्टेनिंग द बेस्ट फिटिंग सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल या बेस्ट फिटिंग पैराबोला. इसी तरह अगर मैं क्यूबिक में चला जाऊं तो अब मेरा एरर फंक्शन, लेट्स लुक एट द एरर फंक्शन अगेन. एरर फंक्शन क्वाड्रेटिक के लिए 3 अननोन्स ए बी सी का फंक्शन था. अगर मैं नेक्स्ट डिग्री पे जाऊंगा, क्यूबिक पे जाऊंगा, तो ए बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी 4 अननोन होंगे. ए बी सी डी 4 अननोन होंगे, तो डिफरेंशिएशन मुझे ए पे, बी पे, सी पे, डी पे 4 पे करनी पड़ेगी, और उससे जो रिजल्टिंग मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने ये लिखा हुआ है. column of unknown A, column of unknown B, column of unknown C, column of unknown D, and the right side constants. In this way, I can go for making system of equation
that can lead to the determination of the coefficients of the polynomial function that I am trying to fit on the data with this method known as least square. मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और मैट्रिक्स मेथड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाता है. Can I go to full screen? Okay. In full screen, can you see both these matrices? Anyone around and listening can answer, please. Yes, sir. दोनों नजर आ रहे हैं ना. ये जो था ये सेकंड डिग्री के लिए था, जिसमें y is equal to ax square plus bx plus c 3 अननोन्स थे. तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये 3/3 है. हाई डिग्री पोलिनोमियल यानी थर्ड पे जाऊंगा तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो 4 अननोन्स हैं, तो 4 इक्वेशंस बनेंगी और कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4/4. मैं इन दोनों को कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ. सेकंड डिग्री starts with x power 4 horizontally in the matrix x power 4, x power 3, x power 2, and right side constant x power 2 into y. Second line x की एक डिग्री कम हो गई थ्रू आउट द सेकेंड रो, और अगली थ्रू आउट द सेकेंड रो x की डिग्री एक और कम हो गई. दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक फिटिंग. दिस इज फॉर क्यूबिक फिटिंग. क्वाड्रेटिक फिटिंग जो थी वो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल 2 into 2 4 फोर्थ डिग्री से स्टार्ट हुआ था. थर्ड डिग्री पोलिनोमियल 3 into 2 x पावर 6 से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट रो वही ट्रेंड है कि x की पावर हर आने वाली टर्म में एक कम होती चली जा रही है. इन द नेक्स्ट लाइन x पावर 5 और सेकेंड रो में x की पावर 1 कम होती चली जा रही है. कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो लास्ट पावर x की वही राइट हैंड साइड में भी x की पावर है जो कि y से मल्टीप्लाई हो रही है. यही सूरत है यहाँ पे. तीसरी रो वर्टिकली भी डिग्री x की कम हो रही है, हॉरिजॉन्टली भी कम हो रही है. लास्ट लाइन क्यूबिक है, यहाँ लास्ट लाइन क्वाड्रेटिक की थी तो एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट. यहाँ क्यूबिक की थी तो x क्यूब एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट. ना अगर मैं थर्ड के बजाय फोर्थ लिखूं पोलिनोमियल, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, तो ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e 5 कांस्टेंट हो जाएंगे. तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो 5/5 बनेगा, और 2 into 5 10, x की पावर 10 से शुरू होगा. पैटर्न बाकी यही का यही होगा. ओके. असल में ये फुल स्क्रीन में टेबल्स जो हैं गड़बड़ हो जाती हैं, इसलिए मैं फुल स्क्रीन आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता. So let us look at this data table and see how we find out a quadratic function for this data. Now data scatter अभी हमने पहले ये 9 पॉइंट है, पिछले वाले प्रॉब्लम 7 पॉइंट का था. इसका डेटा स्कैटर पता नहीं यहाँ नहीं है, वो उसमें था अपना एक्सेल शीट में, वो एक्सेल शीट शेयर ही नहीं हो रही. एनीवेज हमें डेटा स्कैटर से इस वक्त कोई मतलब नहीं है. असल मतलब इससे है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमने बनाना था, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए. हम ये देख चुके हैं कि सेकेंड डिग्री के लिए हमें एक्स पावर 4 से काम शुरू करना है. तो एक्स पावर 4 से काम करना है, इसका मतलब है हमें एक्स भी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए, एक्स पावर 4 भी चाहिए. उसके अलावा क्या चाहिए, उसके अलावा नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं वो चाहिए. उसके अलावा एक्स स्क्वायर का वाई से प्रोडक्ट, एक्स का वाई से प्रोडक्ट. सो हमने एक्स वाई के प्रोडक्ट्स लिख लिए, एक्स स्क्वायर और वाई के प्रोडक्ट्स लिख लिए, और तमाम कॉलम्स कैलकुलेट करने के बाद एक्स के तमाम वैल्यूज का सम समेशन एक्स, वाई की तमाम वैल्यूज का सम समेशन वाई, एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज का सम
एक्स क्यूब की तमाम वैल्यूज का सम, एक्स पावर 4 की तमाम वैल्यूज का सम एंड सो ऑन। हाँ, सारे कॉलम जो है हमने ऐड कर डाले। या हमने इंडिकेट कर दिया कि समेशन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 जो है वो क्या है, ये है। टेबल से देख देख के हमने यहाँ नोट किया। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन में रखा, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करना शुरू किया। रिड्यूस्ड फॉर्म लिख दी है मैंने। ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा कैलकुलेटर के जरिए, और नहीं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। लेकिन एग्ज़ाम जो है वो ज़ाहिर है मैनुअली ही होगा, फाइनल एग्ज़ाम। सो सिर्फ एक सेकंड डिग्री कर्व फिट करने के लिए मुझे 3x3 सिस्टम हैंडल करना है, जिसके लिए मैट्रिक्स मेथड इज मोर सूटेबल। दिस इज द कॉलम ऑफ अननोन ए, दिस इज द कॉलम ऑफ अननोन बी, दिस इज द कॉलम ऑफ अननोन सी। सी की वैल्यू डायरेक्टली रीड करते हैं हम, और बी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन से हासिल करते हैं, ए की वैल्यू भी बैक सब्स्टिट्यूशन से हासिल करते हैं, so that we get this second degree polynomial that best fit the data. Let me try one more time to activate the Excel sheet. I'm sorry, I'm not able to share the Excel sheet. Uh, uh, However, I think the description of least square approximation method for fitting a line or fitting a parabola on the given data scatter is complete, and we can proceed further and see how we can fit an exponential function on the data y is equal to a e power bx. जब हम पोलिनोमियल फंक्शंस के अलावा कोई और फंक्शंस फिट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिट करना सबसे आसान है। अगर हमारा डेटा स्कैटर शो कर रहा है कि उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जैसा कि एक एग्जांपल जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस की आज हमने डिस्कस की थी, उसमें जो डेटा स्कैटर था दैट वाज गोइंग, लेट मी सी, ये मेरी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्हाइट बोर्ड तो शेयर हो रहा है यार। So if I find out that my data is something like this, data scatter is something like this, so it's quite possible कि जो growth है data की वो exponential growth है. This is the situation where I will यार क्या बटन दब गया ये, अब इसने तंग करना शुरू कर दिया। रखे बगैर ही, अच्छा ये आ गया ये।
So come back to y is equal to a e power bx. तो मुझे अगर ये कर्व फिट करना है तो मैं इस पर जरा गौर करूं कि आई कैन अप्लाई ln ऑन बोथ साइड. And then I see that ln y, जिसको मैं टेम्परेरी कैपिटल y लिख सकता हूँ, यहाँ लॉग है दो चीज़ों की प्रोडक्ट का. तो ln a प्लस ln e पावर bx. Then I have y is equal to, in place of ln a, I can write down a plus ln and exponential function are inverse functions of each other. So bx comes down. Rest is ln of e, which is equal to 1. So I have y is equal to small bx plus a. And see that the problem of fitting this exponential function on this data is converted into this problem, where capital Y is ln small y, capital A is ln small a. अब इसके ऊपर जो मेरी लीनियर फंक्शन फिट करने वाली टेक्निक थी वही लगा दूं, और अब मेरे पास जो एरर फंक्शन आएगा, दैट एरर फंक्शन विल बी अ फंक्शन ऑफ बी स्मॉल एंड ए कैपिटल. तो मुझे दोबारा से कोई टेक्निक डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही लीनियर फिट इस्तेमाल करूँगा. लेकिन अब जो डेटा इस्तेमाल होगा इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर के सम्स आएंगे, एक्स के सम आएंगे, और एक्स इंटू कैपिटल वाई के सम आएंगे. समेशन एक्स आएगा, एन आएगा, और समेशन कैपिटल वाई आएगा. इसके ज़रिए मैं जब कैपिटल ए मालूम कर लूँगा तो स्मॉल ए जो एक्चुअली मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट विल बी ई रेज टू पावर कैपिटल ए, जो इसका सोल्यूशन होगा. नाउ दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी. तो इसका मतलब है स्मॉल ए जो मुझे एक्चुअली चाहिए ओरिजिनल फंक्शन में रखने के लिए, यानी ओरिजिनल फंक्शन को लिखने के लिए, वो ई पावर ए होगा. एंड बी एज इट इज इस्तेमाल होगा, ये बी एज इट इज मेरी इसमें इस्तेमाल होगा. और बाकी जो वाई है इसकी वजह से एल एन कैपिटल वाई. सो इससे जो अल्टीमेटली मुझे वैसे इसका कुछ भी नहीं करना, असल चीज़ तो अननोन कैपिटल ए और बी थे, जिसमें अननोन ए स्मॉल ए डिस्टर्ब हो के कैपिटल ए हो गया था, एल एन ए, तो इसको इस्तेमाल करना है. एंड देन स्मॉल ए ऑब्टेन्ड, बी ऑब्टेन्ड, पुट इट इनटू दिस, एंड वी गेट द बेस्ट फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व. So that is described here, where least square approximation word file किधर गई? Here it is. So हमने इस जो कुछ अभी डिस्कस किया व्हाइट बोर्ड पे, वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है. हम इस तरह के जो करते हैं काम कि स्मॉल वाई की जगह एल एन वाई को कैपिटल वाई लिख दिया, स्मॉल ए की जगह एल एन स्मॉल ए को कैपिटल ए लिख दिया. अब ये जो इक्वेशन बनी इसको आमतौर पे हम लॉग लीनियर कहते हैं. एंड द अननोन्स आर कैपिटल ए एंड बी. हम वही डेटा इस्तेमाल करेंगे जिसमें जैसे पहले किया था, लेकिन अब क्या हमें डेटा में कैपिटल वाई चाहिए. कैपिटल वाई का मतलब है हर वाई की लॉग वैल्यू. अब ये हमारे पास डेटा सेट है और it seems to be behaving as exponential function, growing like that. और हमारे पास जो डेटा है उसमें x वैल्यूज, y वैल्यूज और y वैल्यूज के लॉग्स, तो कैपिटल Y का कॉलम,
एक्स स्क्वायर का कॉलम और एक्स इंटू कैपिटल वाई का कॉलम। ये कर लेने के बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना। उसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने देखा कि बी की वैल्यू तो डायरेक्टली ए की वैल्यू डायरेक्टली, ये पहला कॉलम बी का है और दूसरा कॉलम कैपिटल ए का है। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे जो चीज़ें बताई थी, लेट मी शो देम अगेन। जब आप ए मालूम करेंगे तो कैपिटल ए जो है वो ई की पावर में चला जाएगा। ई की पावर में चला जाएगा। So we have got small a 4.25 e raised to power bx, and that is the axial fitted black line. वो भी बिल्कुल यही वैल्यू तकरीबन दे रहा है, 1.1447 दे रहा है वो, तो उसको राउंड करके दे रहा है। R square is a parameter that tells us that how good the data fitting is. So previously R square जब हमने निकाला था किसी जगह, did I? Yes, R square was only 26%. So हमने इसलिए वजह से कहा था ये जो लाइन जो हमने इस पर फिट की है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि डेटा स्कैटर जो है वो लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। So it's only 26% linear. Whereas अब जो हमने डेटा लिया वो अच्छा खासा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा था, here it is, और जब हमने उस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिट किया तो ये 97% जो है वो एक्यूरेट है, ये डेटा फिटिंग। सो एक्सपोनेंशियल अगर आपने फंक्शन फिट करना किसी डेटा पे, so this is the way we modify the procedure, and this time जब आप ये इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, याद रहे कि x का कोफिशिएंट b है, तो b x के जो कोफिशिएंट है वो पहले कॉलम में आते हैं और जो कांस्टेंट होता है वो दूसरे कॉलम में आता है। राइट साइड के कांस्टेंट जो है वो तीसरे कॉलम में आते हैं। इसी वजह से जब सारा काम कर लेने के बाद हमने सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करके रिड्यूस किया, तो हमने कहा था सेकंड कॉलम जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल ए, और उसको ई पावर में रखा तो स्मॉल ए की वैल्यू ये आ गई। वैदुल्ला, मैं 5-7 मिनट में वैसे ही ख़त्म कर रहा हूँ क्लास, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं कह रहा था सेकंड कॉलम से जो है वो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू 1.4488, और उसको हमने ई पावर निकाला, ई की पावर ए से 4.25, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, और वैल्यू ऑफ बी using value of a here, value of b is calculated, which is whose coefficients are in the first column, and we obtain the best fitting parabola, and similarly we can develop techniques for fitting logarithmic curve and other functions on the given data scatter. So mainly आज हमने बात जो शुरू की थी, we started that with an example of interpolating polynomial, where
द आइडिया वॉज वाई आई इज इक्वल टू जो भी मैं पोलिनोमियल बना रहा हूँ एक्स आई, यानी जब भी मैं कोई एस्टिमेटिंग फॉर्मूला बनाऊंगा तो इंटरपोलेशन में ये कंडीशन होगी, यानी जो फंक्शन हमने बनाया उसमें अगर गिवन डेटा में से x निकालूं तो रिजल्ट जो है वो गिवन डेटा का y आएगा। लेकिन अब जो हमने लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन की बात की है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में ऐसा नहीं है। अब हम जो फंक्शन बना रहे हैं, जो भी फंक्शन आएगा उसमें अगर हम x की जगह i रखें तो जो y वैल्यू निकल के आएगी that will in general not be yi, यानी डेटा सेट का जो y हो corresponding to xi. So there will be some deviation in calculation of y from the estimation and the actual y. अब अगर मैं सिर्फ इन एरर्स का सम ले लूं तो दैट विल कम आउट टू बी जीरो। डेविएशन सम इज ऑलवेज जीरो, मगर अगर इनको स्क्वायर्स लें तो फिर ये जीरो नहीं होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। I is equal to 1 to n. This was initially termed as error function of x, but error function किस चीज का फंक्शन है? That depends on कि मैं y क्या बना रहा हूं। So if y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, so error function will in fact be function of a, b, c, d, and that will mean summation I is equal to 1 to n, y replaced by this function where each x is replaced by xi. So axi cubed plus bxi squared plus cxi plus d. और हमारी जो टेक्निक है दैट इज बेस्ड ऑन कि मैं डेरिवेटिव्स ऑफ एरर फंक्शन with respect to a, with respect to b, with respect to c, with respect to all unknowns in the estimating polynomial. अरे भाई ये जरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ से माइनस वाई आई, इन सब पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो रख के 4 इक्वेशंस बनेंगी जिससे ए बी सी डी ना। यहाँ पर जो पोलिनोमियल बनेगा जैसा भी हो वो हर डेटा पॉइंट से गुजरेगा इंटरपोलेशन में, जबकि लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन से जो कर्व बनेगा अगर उस शी शेप का भी हो तब भी डेटा जो है दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली ऑन द कर्व, दैट मे बी नियर द कर्व। सो ये चीज जो है ये इंटरपोलेशन में तो है बट नॉट इन लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। यानी रिजल्टिंग फंक्शन ऑफ इंटरपोलेशन के ग्राफ ऐसा होता है कि हर डेटा पॉइंट एक्स आई वाई आई जो है वो ग्राफ के ऊपर होता है, ग्राफ उसके ऊपर से गुजरता है, मगर यहाँ एक्स आई वाई आई ग्राफ के ऊपर होना जरूरी नहीं है, विद द प्रिजम्पशन कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें कुछ एरर होगी, इस लिहाजा एग्जैक्ट फंक्शन बनाने के बजाय हम अप्रॉक्सीमेट फंक्शन बना रहे हैं। With that comment, I terminate today's discussion. And please let me know कि जो मैंने आज सिवाय वाइट बोर्ड के इस्तेमाल किए, जो फाइल्स आज इस्तेमाल की हैं मैंने,
वो फाइल्स जो हैं वो रिसोर्सेज में मौजूद हैं या नहीं, जो अगर मौजूद नहीं होगी तो आई विल अपलोड। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अब मैं सेशन टर्मिनेट कर रहा हूँ। सर आपकी तबीयत कैसी है? यार तबीयत बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त ही। मेरे एक तो शुगर लेवल का प्रॉब्लम होता है और थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम होता है। जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो नोट किया होगा थोड़ा सा आज मैं बहुत स्लो स्लो चलता हूँ। आई ट्राई टू मतलब होल्ड माई एक्साइटेशन लेवल। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो आई हैव बीन ट्राइंग टू रिमेन वेरी लो एंड स्लो। दुआ करना मेरे लिए बस कि ये जरूर सर। वी आर जस्ट नाउ टर्मिनेटिंग। पहले मैं रिकॉर्डिंग